Okay. So see over here. So if adjoint is n by n, right? Definitely its order is n by n, and its determinant is also not equal to 0. So for any matrix, if its order is n by n and its own determinant is not equal to 0, then what can be its rank? Tell me. What should be its rank? Its rank will be what? N or not? N. It's n. See, don't focus this n minus 1. This is any value. This is non-zero value. Determinant A is non-zero value. Its n minus 1 power will be 0. Okay, or not 0, sorry. Okay, so it is having some value. So it's an adjoint A is your nth order matrix. So here it's, if it is nth order matrix and its determinant is not equal to 0, then its rank is n or not. Is it clear? Please give me some response, or shall I explain this once again? See, we know that determinant of adjoint A is determinant A to the power n minus 1 or not. Here our determinant is not equal to 0. Suppose it is having something value 5, 4, 3. I am putting this value over here 5, 4, 3 to the power something n minus 1. And if your n is 6, it is 5, right? If your n is 10, it is 9, something. So 5 to the power 9, suppose it is going to give you some value, it is non-zero. So for this matrix, one matrix is there adjoint A, it is n by n matrix. So for this matrix of nth order, its determinant is non-zero or not. For nth order matrix, its determinant of nth order is non-zero or not. If its nth order determinant is not equal to 0, then its rank will be what? N, isn't it? If it's, then it is, n is its largest order of non-vanishing minor, isn't it? Please give me some response. You got this? Right. Chalo, let me give you one more question. So this is last question of that type. Suppose x is equal to x1, x2, x3 up to xn transpose is a non-zero vector. Vishal, I think you are unmuted. Please mute yourself. Thank you. Is a non-zero vector. Now we have to find rank of x into x transpose. Right. What should be rank of x into x transpose? Your options are n, 1, 0, d cannot be determined. So see over here how we can find this. If x is your x1, x2, x3 up to xn whole transpose is a non-zero vector, and we have to find rank of x into x transpose, x dot x transpose. Then how we can find that? First, what is x? See, your x is x1, x2 up to xn whole transpose. So it is your row vector, and when you will apply transpose to it, it will become column vector or not, right? So this will become your column vector x1, x2 up to xn. Okay, which is having n rows and 1 column. Oh yes, and even I haven't shown you multiplication based question or not, right? Multiplication questions बाकी है ना? हाँ, तो इसके बाद वही ले लेंगे, but देखते हैं टाइम, पहले ये कर लेते हैं. So x is equal to x1, x2 up to xn, n by 1. Okay, Praveen, we will check. So Praveen got one answer. We will check it is right or wrong. X transpose is x1, x2. That means transpose of this, it will become this row vector or not. Now we have to find rank of x into x transpose. I have to multiply this x into x transpose. Okay, Bhamin also got some answer. We will check that. So how we are going to find this x and x transpose? See over here. So whenever you are going to multiply two matrices, if this is n by 1, this is 1 by n, for their product, your number of rows of first matrix and number of column of first matrix and number of rows of second matrix should be same. If you are multiplying two matrices A and B, right, and suppose your order of A is m by n, so order of B should be n by p. That means these two should be same. And suppose you are getting its answer as another matrix C, so order of C will be m by p. This you remember or not? I think थोड़ा बहुत याद होगा. ये चीजें याद है students?
ओके, मैट्रिक्स प्रोडक्ट की। ओके, सो प्रवीण, बमिन, अमन तीनों को सेम आंसर आया है, चेक करते हैं। ओके, सो x इंटू एक्स ट्रांसपोज, अब ये हमें आंसर क्या मिलेगा, n बाई n, राइट, ये हमें एक n बाई n मैट्रिक्स मिलेगा। चलो अब इसके सारे एलिमेंट्स हम कैसे फाइंड कर सकते हैं स्टूडेंट्स, इसके सारे एलिमेंट हम कैसे फाइंड कर सकते हैं, रो इंटू कॉलम और नॉट, राइट, फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, x1 into x1 square, then x1 x2, then x1 x3 up to x1 xn. चलो सेकंड एलिमेंट x2 x1, then x2 square up to x2 xn. In the same way, last element xn x1, xn x2, right, and when it will be multiplied there, it will be xn into xn square, right, row into column. And you have to multiply two matrices like row into column, right, row of A, columns of B. ओके, चलो, सो ये हो गया आपका x1 स्क्वायर x2 स्क्वायर अप टू xn स्क्वायर और ये सारी चीजें। चलो अब इसकी मदद से मुझे इसका रैंक फाइंड करना है, मैं कैसे फाइंड कर सकता हूँ, टेल मी। डेफिनेटली अगर इसको मल्टीप्लाई करके मुझे रैंक चेक करना हो, सो इट इज इम्पॉसिबल, राइट, और वेरी डिफिकल्ट। क्या आपको ये एक चीज याद है जो मैंने लास्ट टाइम आपको मीटिंग एंड करते टाइम दिखाई थी, रैंक ऑफ A इंटू बी इज लेस देन और इक्वल टू मिनिमम ऑफ रैंक ऑफ A कॉमा रैंक ऑफ B और नॉट। क्या ये चीज याद है, rank of A into B is less than or equal to minimum rank of A comma rank of B. Rank of X into X transpose is less than or equal to minimum of rank of X comma rank of X transpose or not. Okay, so this approach is very difficult, right? So here, from here we cannot determine. So that's why in whenever you are seeing any options in gate that it is can't be determined, right, or it is none of this, so for this just take care. So it cannot be determined or none of this by only one approach, right, at that time you have to use another approach, students. Okay, so yes, Afraim also got one answer, if my pronunciation is right. Afraim Sheikh, this is only your pronunciation, na? Afraim, sorry, Afraim Sheikh. Okay, Afraim. Okay, sorry Afraim. So किसी का भी अगर हाँ, yes, can you speak? No, it's okay. Okay, किसी का भी नाम लेने में अगर मुझसे गलती हो रही हो तो प्लीज बता देना, ओके, क्योंकि वो स्पेलिंग की वजह से पता नहीं चलता है। So where were we now? So it is A into B equal to C. Okay, so this can be determined by this approach, right? So this can be determined by this approach. So let us use next approach. So this is our approach number 2. So let us use this approach. For this approach, rank of X into X transpose is less than or equal to minimum of rank of X and rank of X transpose. So the rank of X transpose is your 1 by n matrix or not? What is its rank? What is rank of X transpose from here? It is having only one row, so 1. What is rank of X from here? Can I convert it into echelon form? No, just take care. First, you have to convert into echelon form. Okay, so with the help of this x1, can you make all the elements 0? With the help of this x1, can you make all the remaining elements 0 or not? Isn't it? Are you getting my point? Suppose आपके पास सारे elements है 1 2 3 4 5. So 1 की मदद से आप बाकी सबको 0 कर सकते हो. Isn't it? So सिर्फ एक एलिमेंट बचेगा, तो रैंक ऑफ x will be 1 or not? क्योंकि आपको बोला इट इज नॉन जीरो मैट्रिक्स, वो आपका एक नॉन जीरो मैट्रिक्स है। नॉन जीरो मैट्रिक्स का मतलब क्या हुआ, एक एलिमेंट तो बचेगा। डिवाइड 1 रो बाई x1, हाँ, तो बाहर x1 को आप मल्टीप्लाई करोगे तो 1 हो जाएगा, तो उसकी मदद से बाकी सबको 0 कर दोगे तो फर्स्ट रो में 1 बच जाएगा। ओके, सो रैंक ऑफ x इज 1. So this is your less than or equal to minimum of 1 comma 1. So it should be less than or equal to 1.
अब लेस देन और इक्वल टू 1 में आपके पास दो ऑप्शन है, आइदर समझो, अब देखो गेट वाले कितने चालाक हैं। सी आपको पता था कि देखो 70-80% स्टूडेंट्स यहाँ पे अटक जाएंगे, वो कैन बी डिटरमाइन करके आगे बढ़ेंगे। फिर जो 20% स्टूडेंट्स हैं जिनका ये आंसर आएगा लेस देन और इक्वल टू 1, अब वो वहां यहाँ पे कंफ्यूज हो जाएंगे 1 और 0, और फिर यहाँ पे उसको छोड़ देंगे। तो 20% स्टूडेंट्स इसको अटेंड ही नहीं करेंगे। अब 5% to 10% स्टूडेंट्स इसको देखेंगे अच्छे से, चलो ये रैंक इसका लेस देन और इक्वल टू 1 है, implies this rank can be 1 और 0। अब 1 और 0 में से मैं क्या ले सकता हूँ, तो समझो यहाँ पे आपको ये बोला गया है कि ये नॉन जीरो वेक्टर है। नॉन जीरो वेक्टर मतलब मिनिमम एक एलिमेंट तो ऐसा होगा जो नॉन जीरो होगा। अब वो एलिमेंट कुछ भी हो सकता है, आइदर दैट एलिमेंट कैन बी x1 x2 और एनीथिंग। तो कोई भी एक एलिमेंट होगा, सपोज मैं x2 ले रहा हूँ, x2 आपका नॉन जीरो है मिनिमम, बाकी सारे जीरो है। तो यहाँ पे भी x2 आपका नॉन जीरो है, बाकी सारे जीरो है। तो जो भी एक नॉन जीरो होगा एलिमेंट, सपोज यहाँ पे मैंने x2 लिया, तो यहाँ पे वो एक एलिमेंट बचेगा कि नहीं, बाकी सारे एलिमेंट जीरो हो जाएंगे। प्लीज गिव मी सम रिस्पांस। बाकी सारे एलिमेंट जीरो हो जाएंगे, सिर्फ एक एलिमेंट बचेगा। तो अगर एक भी एलिमेंट बच रहा है तो उसका रैंक क्या आएगा, 1, राइट। जीरो तो पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि जीरो कब आएगा, जीरो तब आएगा जब पूरा का पूरा आपके पास नल मैट्रिक्स हो। जीरो इज ओनली फॉर नल मैट्रिक्स। ओके, क्या यहाँ पे नल मैट्रिक्स है? अगर यहीं पे क्वेश्चन में आपको एक्स ऐसा दिया होता है इट इज जीरो मैट्रिक्स, अगर एक्स आपका जीरो मैट्रिक्स होता तो वो नल मैट्रिक्स हो जाता। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? ओके, तो अगर वो नल मैट्रिक्स दिया है तो ये जीरो होगा फॉर नल वेक्टर। अगर आपको ऐसा दिया होता कि एक्स इज नल वेक्टर, ओके, और जीरो मैट्रिक्स और जीरो वेक्टर, सिंस क्वेश्चन में आपको दिया है कि x इज नॉन जीरो वेक्टर, दैट मींस इट्स रैंक शुड बी 1। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? मजा आ रहा है, राइट? गेट के क्वेश्चन में सारी चीजें पता चल रही है? प्लीज गिव मी सम रिस्पांस। ओके, सो रैंक ऑफ द मैट्रिक्स विल बी 1 ना, n कैसे होगा, राइट? सो हियर रैंक ऑफ मैट्रिक्स इज 1। सो आपको इसमें डाउट हो रहा है n और 1 में? यू कैन आस्क मी। हाँ ये x का, हाँ x का सर वो जो रो ऑफ एक्स की बात कर रही हूँ, उसमें कॉलम तो n होगी ना, मिनिमम ऑफ रो ऑफ एक्स वाला। अच्छा, इसमें इसकी बात कर रहे हो, एक्स ट्रांसपोज की बात कर रहे हो, रो एक है और कॉलम n है। सर ये सेकंड है ना एक्स वाला, उसमें n कॉलम है, तो हाँ हाँ, n तो उसका रैंक n होगा। नहीं नहीं नहीं, अब समझो, तो आप नहीं आराम से ठीक, ये आपका रो एक है कॉलम n है, राइट? अब रैंक की डेफिनेशन क्या है, नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज इन इट्स इक्वलन फॉर्म। अब इसमें तो इक्वलन फॉर्म हो ही नहीं सकता क्योंकि एक ही रो है, तो इसमें नॉन जीरो रो आपकी एक ही हो जाएगी, राइट? सो रैंक ऑफ एक्स ट्रांसपोज इज 1। और अगर आप m by n रूल यहाँ पे यूज कर रहे हैं, तो अकॉर्डिंग टू दैट रूल it should be minimum, it should be less than or equal to of minimum of m and n, that is minimum of 1 and n, and minimum of 1 and n is 1। so ये x ट्रांसपोज का रैंक आइदर 1 हो सकता है या 0 हो सकता है, बट सिंस एक एलिमेंट, कोई भी एक एलिमेंट आपका नॉन जीरो है, इसलिए उसका रैंक 1 होगा। सर रैंक ऑफ एक्स की बात कर रही हूँ। रैंक ऑफ एक्स, ओके। तो रैंक ऑफ एक्स में n रो है, n कॉलम नहीं है। रैंक ऑफ एक्स में n रोज हैं, ओके, और 1 कॉलम है। तो अब यहाँ पे मैं एक एलिमेंट को पकड़ के बाकी सारे एलिमेंट को जीरो कर सकता हूँ, समझना। x आपका कैसा है, सपोज x आपको कोई भी एक एग्जांपल ले लेता हूँ मैं रैंडमली, ओके, सपोज 1 2 3 अप टू कुछ भी, सारी कुछ बीच में एलिमेंट्स रिपीट हो रहे हैं, सपोज n 1 to n मैं डायरेक्ट ऐसे ले रहा हूँ, ओके, ऑल एलिमेंट्स आर डिफरेंट। सो विद द हेल्प ऑफ दिस वन कैन आई मेक ऑल दिस एलिमेंट्स जीरो और नॉट, राइट? मैं ऐसा अप्लाई कर सकता हूँ r2 minus 2 times r1, r3 minus 3 times r1, rn minus n times r1, ओके, तो वो सारी चीजें अप्लाई करूंगा तो ये सब जीरो हो जाएंगे। नाउ व्हाट इज दिस डेफिनेशन, नंबर ऑफ नॉन जीरो एलिमेंट्स और नंबर ऑफ नॉन जीरो रो इन इट्स echelon form, row echelon form. So here rank of x will be 1 or not. Okay sir. Is it clear now? Okay. Any other doubts? और किसी का और कोई डाउट है? Please give me some response. Okay, मजा आया ये सारे क्वेश्चंस करके?
थोड़ा ऐसा लगा अभी, थोड़ा माइंड आपका मतलब डेवलप हुआ, थोड़ा शार्प हुआ, गेट टाइप के क्वेश्चन, ठीक है, जो आप रेगुलर क्वेश्चन कर रहे थे उससे अलग कुछ हमने शॉर्टकट ट्रिक सीखी, राइट। उसके अलावा किस तरीके से प्रॉब्लम को अप्रोच करना है, कब नन ऑफ दिस कांट बी डिटरमाइंड, ऐसे वाले ऑप्शंस को कैसे हैंडल करना है, ऐसे क्वेश्चंस को, वो सारी चीजें हमने देखी। ओके, सो दिस इज इट फॉर लीनियर अलजेब्रा फॉर दिस वीक। ओके, इसके बाद आपका लीनियर अलजेब्रा में जो रिमेनिंग पोर्शन है वो मैं आपको बता रहा हूँ, ताकि अगर आप घर से कुछ भी कर रहे हो तो कर सको। तो लीनियर अलजेब्रा में आपका रिमेनिंग पोर्शन है, कुछ प्रोडक्ट वाले आप रूल्स दे सकते हैं, ए इंटू बी वाले कुछ क्वेश्चन देख सकते हैं अच्छे अच्छे से। फिर सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन, इनका सॉल्यूशन, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन में आपको नॉन होमोजेनियस एंड होमोजेनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन मिलेंगे। फिर स्टॉप अनोटेशन स्टूडेंट्स, थैंक यू। और फिर हम देखेंगे आइगन वैल्यू एंड आइगन वेक्टर। ओके, तो ये चीजें बाकी है, ये चीज आप लीनियर अलजेब्रा में कर सकते हैं, ठीक है। तो इसकी मदद से आप ये सारी चीजें जो आपकी खत्म हो जाएंगी, जैसा मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, 5 से 6 मार्क्स एक्सपेक्ट कर सकते हैं फ्रॉम होल लीनियर अलजेब्रा। ओके, सो और मिनिमम 4 तो आता ही है, 4 मार्क का। ओके, सो अभी 2 दिन, फ्राइडे एंड सैटरडे, हम फिर न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड शुरू करेंगे। ओके, सो थैंक यू एवरीवन, हैव अ ग्रेट डे। Be safe. See you tomorrow.